میں نے کہا کہ اردو جو ہے ہمارے دیش کو طاقت دیتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو خود بھی جو ہے وہ اردو کی طرف توجہ دینی چاہیے. اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے اردو بول تو نہیں اردو، لیکن جو پڑھنے والی بات جو ہے اور جو لکھنے والی بات جو ہے اس میں کمزوری آ رہی ہے. دیکھیے اس میں جو نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے اس میں 2020 اس میں جو ہے ایک بہت اچھی بات یہ دی ہوئی ہے کہ 5 سے 8 کلاس تک جو ہے آپ اپنی مادری زبان میں پڑھیں گے. جب نئی بستیوں میں اردو جا رہی ہے تو وہاں سے تو شامل ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں بھی اردو کا ڈپارٹمنٹ ہے، تہران یونیورسٹی میں بھی اردو کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت یورپین کنٹریز میں بھی یہ ایک طرح کا مشورہ ان کو دیا گیا ہے کہ آپ اردو زبان کو رکھیں. اردو کی پیدائش کی حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ کئی زبانوں کو مل کے بنی ہے، اسی لیے اس کو ریختہ کہا گیا. کسی بھی چیز کو جیسے کوئی دیوار آپ کھڑی کر رہے ہیں تو اینٹ گارا چونا لگا کے جب کسی دیوار کو پختہ کرتے ہیں تو اس کو ریختہ کرنا کہتے ہیں. اسی طرح بہت ساری زبانوں کو جب ملا کے ایک زبان بنی وہ ریختہ تھی جو اردو کا نام ہے. کانفرنس کا آج افتتاح کیا گیا. سابق مرکزی وزیر اور معروف صحافی ایم جے اکبر صاحب نے ایک خاص بات کہی کہ اگر اردو کمزور ہے تو ہمارا دیش بھی کمزور رہ جائے گا. نہیں میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے کہا کہ اردو جو ہے ہمارے دیش کو طاقت دیتا ہے. اردو زبان کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بزرگ زبان کا مستقبل بہت ہی روشن. تو ایم جے اکبر صاحب نے آج ورلڈ اردو کانفرنس میں مہمان خصوصی یعنی چیف گیسٹ کے طور پر شرکت کی، اور انہوں نے کہا کہ اردو کو مضبوط کیا جانا چاہیے کیونکہ ہندوستان کمزور ہو جائے گا اگر اردو مضبوط نہیں ہوگی یا ہماری زبانیں کمزور ہوں گی. ورلڈ اردو کانفرنس کا آج افتتاح کیا گیا اور اس میں مہمان اعزازی کے طور پر پروفیسر طارق منصور صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فارمر وائس چانسلر رہے ہیں اور یو پی میں ابھی ایم ایل سی ہیں. اردو کے حوالے سے آپ نے بہت خاص اور اہم گفتگو کی، خاص بات چیت کے لیے موجود ہیں. اردو زبان جس طرح سے آج ورلڈ اردو کانفرنس کا افتتاح کیا گیا، اردو زبان کے مستقبل کو لے کر آپ سب نے کافی امید افزا باتیں کی ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو اس کے جو ہوں بہت مجھے امید ہے کہ یہ زبان جو ہے پاپولر ہوگی. بیچ میں کچھ سیٹ بیک آئے ہیں لیکن اب جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیکن میں جو ہے کافی پاپولر ہو رہی ہے. ادھر یہ آپ کے مہاراشٹر میں بھی پاپولر ہو رہی ہے، اورنگ آباد اور بامبے اور جگہوں پہ بھی. اب اس میں جو ہے کشمیر میں بھی پاپولر ہے. اب اس میں ہمیں ضروری یہ ہے کہ یو پی اور بہار میں کام کرنا ہے. یو پی اور بہار میں اس لیے کہ یہ جو ہے جو اردو بہار میں اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے اسکرپٹ کے اوپر. اردو بول تو نہیں اردو، لیکن جو پڑھنے والی بات جو ہے اور جو لکھنے والی بات جو ہے اس میں کمزوری آ رہی ہے. تو اس کے اندر جو ہے جیسے میں نے یہ کہا بھائی دیکھیے سرکار حکومت جو ہے وہ بھی کرے گی، جو بہت سے آرگنائزیشنز ہیں وہ کریں گے. ریختہ فاؤنڈیشن ہے، NCPUL ہے، اردو اکیڈمیز ہیں، خسرو فاؤنڈیشن ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو خود بھی جو ہے وہ اردو کی طرف توجہ دینی چاہیے. اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے اردو. اس طرح سے. لیکن اب اگر یو پی کی بات کر رہے ہیں تو یو پی کی طرف ایک بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ یو پی میں اردو کمزور ہو رہی ہے. اب آپ حکومت میں بھی ایک طرح سے شامل ہیں اور کافی قریب ہیں، تو کیا حکومت سے اس سلسلے میں کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کرنی دیکھیے چاہیے؟ اب ایسا ہے، دیکھیے اس میں جو نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے اس میں 2020 اس میں جو ہے ایک بہت اچھی بات یہ دی ہوئی ہے کہ 5 سے 8 کلاس تک جو ہے آپ اپنی مادری زبان میں پڑھیں گے. تو اس میں اگر جو ہے اردو اسپیکنگ بچے جو ہیں وہ یہ دیں گے، پریفرنس دیں گے کہ ہمیں اردو کو کرنا ہے. اردو ٹیچرز ہیں موجود، بہت اردو ٹیچرز ہیں، یو پی میں بھی ہیں، بہار میں بھی اردو بہار ٹیچرز میں ہیں. تو کافی ابھی بھرتی ہوئی لیکن یو پی میں بہت کم نہیں ہے. اب ادھر کم ہوئی ہوگی لیکن پہلے سے ہیں اردو ٹیچرز. تو یہ جو ہے وہ پڑھائیں گے پھر.
तो तभी तो वो पढ़ाएंगे जब वो करेंगे ऑप्ट बच्चे। उर्दू के मुशायरों के हवाले से आपने एक बात कही कि काफ़ी उम्मीद की बात है, काफ़ी हौसला देखने को मिल रहा है, उसका आपने जिक्र किया था। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे बहुत पॉपुलराइज हो रही है और यंग लोगों में हो रही है उर्दू। तो प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने वाज़े तौर पर अपनी बात कही है और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से उर्दू को मकबूलियत मिल रही है, मैं काफ़ी उम्मीद अफ़ज़ा हूँ, मैं पुरुम्मीद हूँ और मैं मुस्तक़बिल में उर्दू के लिए काफ़ी खुशाइंद बात देखता हूँ। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही तकरीब में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब तशरीफ़ लाए, ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उर्दू के हवाले से कई अहम बातें निकल कर आईं। ये जो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस है, इसमें कई ममालिक के लोग शामिल हो रहे हैं, उर्दू स्कॉलर्स आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, वो क्यों नहीं शामिल होंगे? जब नई बस्तियों में उर्दू जा रही है तो वहाँ से तो शामिल होंगे। आपको पता है कि मिस्र में भी उर्दू का डिपार्टमेंट है, तेहरान यूनिवर्सिटी में भी उर्दू का डिपार्टमेंट है, और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये एक तरह का मशवरा उनको दिया गया है कि आप उर्दू ज़बान को रखें। और एक चीज़ जो यूरोप और अमेरिका में उर्दू के हवाले से समझ में आ रही है, जिसमें मुझे भी बुलाया गया, वो ये है कि अगर कोई ज़बान बहुत अच्छी तरह से मॉरल एजुकेशन दे सकती है तो वो हिंदुस्तानी ज़बान है। हिंदुस्तान की ज़बानों को तरजीह दी जा रही है। और आपको यकीन दिला दूं कि 2007 से लेके आज तक मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर उर्दू की कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो मैं ये जानता हूँ कि उर्दू की जो नई बस्तियाँ हैं और उसमें जो फ़रोग़ उर्दू को मिल रहा है, वहाँ से उनका आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं, और आप यकीन नहीं करेंगे कि शायरात निकल के आ रही हैं, यानी जिनकी मादरी ज़बान अरबी है, जिनकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है, वो उर्दू में शायरी करने के लिए सामने आ रहे हैं। लेकिन कई बार जैसे आप कह रहे हैं दक्कन में उर्दू की बात आपने की, दक्कन में उर्दू काफ़ी मकबूलियत हासिल हो रही है और बढ़ रही है। लेकिन यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ पे देखते हैं, बिहार में हालांकि कुछ हद तक अभी है, यूपी के सरकारी स्कूलों में उर्दू तकरीबन ख़त्म हो गई। देखिए, मुझे अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी को देखूं तो हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं ईस्टर्न यूपी से, और हमने एक मदरसा कनेक्ट प्रोग्राम चलाया है। तो मदारिस जो हैं वो बहुत मजबूत हैं उर्दू के सिलसिले में, और इन मदारिस को हमने शाहीन ग्रुप से टाई अप किया और हम उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी से एड्रेस करेंगे। यही हाल बिहार का है कि बिहार से बहुत बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जिनकी बैकग्राउंड ही उर्दू है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनको उर्दू चूँकि दिया गया है, इसलिए अपने माफिज ज़मीर को समझाने में भी कामयाब होते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि उर्दू और उर्दू के हवाले से बात करने का मकसद ये नहीं है कि आप हिंदी ना जानें, आप अंग्रेज़ी ना जानें, आप फॉरेन लैंग्वेजेस को ना सीखें। ये लैंग्वेजेस हैं जो आज की इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हैं, लेकिन अब आप जाएंगे तो आप मशीनों की ज़बान तो अंग्रेज़ी है। आप अगर अपने मोबाइल को साथ रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी को एक्सेस करना पड़ेगा। अगर वाकई आप मुस्तकिल मिजाज हैं ज़बान को सीखने के लिए तो बड़ी सहूलतें आपको मिल गई हैं। और अगर ये देखिए आप रेख्ता.com को आप ब्राउज़ कीजिए, पूरी इंसाइक्लोपीडिया आपको वहीं पे मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे विकीपीडिया है वैसे ही रेख्ता है। तो ये लोग काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और आजकल जो है वो कंप्यूटर सेवी भी उर्दू हो रही है। यानी ये एक बात तो सच्चाई है कि जो मदारिस हैं उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में जो मदारिस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कहाँ नहीं है, आप समझिए बंगाल में मदारिस नहीं हैं, कि आसाम में मदारिस नहीं है। उनकी ज़बान है, वहाँ की असमीज़ हो सकती है, बंगाली हो सकती है, मगर मदरसे भी हैं जहाँ मदरसे में वो सीखते हैं। और जब आपने अरबी और फ़ारसी सीखी तो उर्दू भी सीखने में प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है?
ऐसा नहीं है। आपने दक्कन को देखा कि दक्कन के अंदर शौक है उर्दू का। तेलुगु बोलते हैं मगर उर्दू का शौक है। तो इसी सूरत से है। लेकिन आप किसी के ऊपर कोई ज़बान थोप नहीं सकते। ये शौक पैदा करना पड़ेगा। शौक पैदा करने के लिए अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? आपने रस्मुल ख़त नहीं सिखाया, ज़बान सिखा दी। बच्चे ज़बान बोल रहे हैं लेकिन उर्दू के रस्मुल ख़त से नावाकिफ़ हैं। इसको देखना होगा, ये वालिदैन को देखना पड़ेगा। जो उर्दू रस्मुल ख़त या स्क्रिप्ट से नावाकिफ़ हैं उनको क्या पैगाम देंगे? उनको हम कह रहे हैं कि आप उस रस्मुल ख़त को सीखिए। आजकल तो बहुत आसान है। कहाँ जहाँ चाहिए आप बैठे हुए हैं, अपना मोबाइल लिए हैं, उससे सीख लीजिए। हमने न जाने कितने कोर्सेस बनाए हैं आपको अपने आप सीखने के लिए। ये तो पूरी आजकल मार्केट है। लोग खुद सिखा रहे हैं अपने आप। उनके ऑडियो वीडियोस चल रहे हैं। ये देखिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप उस तरफ राग़िब नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। रग़बत होगी तो बहुत कुछ होगा। मुस्तक़बिल को लेकर, उर्दू की मुस्तक़बिल को लेकर नहीं, मुझे नहीं लगता उर्दू को मुस्तक़बिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी हमें ग्रांट्स दी हुई हैं। ऐसा नहीं है। अब हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है उसके 33 ऑफ कैंपसेस हैं। मतलब ऑलमोस्ट 14 स्टेट में हम हैं। तो ये 14 स्टेट में हमारे टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। उनको उनकी सैलरी भी है, उनकी दीगर जो ज़रूरियात हैं उनके लिए भी ग्रांट्स हैं। तो यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छे माहौल में चल रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। और यही हाल और भी यूनिवर्सिटीज़ का है। जहाँ जहाँ उर्दू है, उर्दू को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमारे पड़ोस में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ उर्दू कमज़ोर नहीं है। NCPL जिसके प्रोग्राम में यहाँ इफ्तिताही इनॉग्रल सेशन में हम सब मौजूद थे, ये हुकूमत का इदारा है, सरकारी इदारा है। जिस तरह से अभी काम किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपकी मुतमईन है इससे या? नहीं, अभी जो डायरेक्टर हैं शम्स इकबाल साहब, वो काफ़ी मतलब एक तो इल्मी हैसियत से भी वो काफ़ी बावक़ार हैं। और उनके पीछे एक एक्सपीरियंस NBT का है, नेशनल बुक ट्रस्ट का। तो उसको अगर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुश्वारी हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेंज बढ़ा सकते हैं वो। और उनके सपोर्ट में गवर्नमेंट है। तो जब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है तो माली एतबार से भी आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया सर। तो प्रोफेसर सैयद अनुल हसन साहब ने एक ख़ास बात कही है कि उर्दू के फ़रोग़ में मदारिस का अहम किरदार है। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी भरपूर ताउन मिल रहा है, चाहे वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और उसके दीगर कैंपस हों या फिर कौमी कौंसिल की बात कर ली जाए। तमाम उर्दू इदारों को जो हुकूमत से वाबस्ता हैं उनको इमदाद मिल रही है। आज भी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया और आज जश्न बहार ट्रस्ट की बानी कामना प्रसाद साहिबा ने शिरकत की। उर्दू ज़बान के हवाले से आपने एक बहुत ख़ास और बहुत अहम तकरीर की। उसमें आपने इसका ज़िक्र किया कि ये किसी मज़हब की ज़बान नहीं है। मज़हबों को ज़बान की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़बानों का कोई मज़हब नहीं। और जिस ज़बान में भी आप बात करें, मैंने अभी रामचरितमानस कहा, मैंने अभी आपको गुरु ग्रंथ साहब की बात की, मैंने और भी अर्ज़दाश्त की बात की और नमाज की बात की। तो ये सब एक ज़बान के, एक मज़हब की ज़बान नहीं बल्कि अलग अलग ज़बानों से आए हैं। आपने मुख्तलिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बताया कि ये गंगा जमुनी तहज़ीब की अलामत है या कई ज़बानें मिलकर उर्दू के साथ कई ज़बानें हैं, उर्दू के अल्फाज दूसरे हाँ, ज़बान तो में वो इस्तेमाल उसकी किए जाते पैदाइश की हकीकत है। जी। उर्दू की पैदाइश की हकीकत ही ये है कि वो कई ज़बानों को मिलके बनी है, इसीलिए उसको रेख्ता कहा गया। किसी भी चीज़ को जैसे कोई दीवार आप खड़ी कर रहे हैं तो ईंट गारा चूना लगा के जब किसी दीवार को पुख्ता करते हैं तो उसको रेख्ता करना कहते हैं। उसी तरह बहुत सारी ज़बानों को जब मिला के एक ज़बान बनी, वो रेख्ता थी जो उर्दू का नाम है। लेकिन उर्दू को आज एक मखसूस मज़हब से, एक ख़ास मज़हब से जोड़ दिया गया। अब ऊपर वाला उनको मतलब
बकश दे और क्या कहें। आखिरी सवाल, उर्दू का मुस्तकबिल कैसे देख सकते हैं? बेहतरीन देखते हैं, हम मायूस नहीं हैं। जब तक हम और आप कलाम करेंगे और मोहब्बत करेंगे, उर्दू है। शुक्रिया। रहती दुनिया तक उर्दू है। तो कामना प्रसाद साहिबा ने कहा कि रहती दुनिया तक उर्दू हमेशा ज़िंदा रहेगी और हम उर्दू का मुस्तकबिल काफ़ी रोशन देखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।